So hi students, I am Atul Rana and I am back with 12th chemistry. We were studying the solid state. Okay, so my topic for today is packing in solids. Okay, then how atoms are packed in solids. So the topic for today is packing in solids. But before moving, I want to add up one thing, that there was one correction is required. If you have seen my earlier videos, I have told you edge-centered. Okay, edge-centered cubic cell. Edge-centered cubic cell. Okay, so in the edge-centered cubic cell, कैसे है? This normal cubic cell होता है. Normal cubic cell is like that. This is the normal cubic cell. Okay, in the normal cubic cell there is atoms at each corner. Okay, this, if you have studied my earlier videos, this is clear that this is simple cubic cell. Now what is there in edge-centered cubic cell? That at every edge there is an atom. How many edges are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 edges, and in edge-centered cubic cell there is one atom at every edge. Okay, so total contribution by corner cells, that I have already told you, I will not repeat. 1 upon 8 multiply 8 that equal to 1 atom or 1 scale. Okay, now total contribution by edge. Total contribution by edge atoms. Okay, so देखो एक तो एज है ना, एक इसके साथ है, एक इसके साथ है. ठीक है, आधा एटम अंदर होगा, अंदर बाहर होगा, उसके साथ शेयर होगा, और उसके ऊपर ये दो होंगे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसका 1/4 होता है. तो 1/4 into 12, so 3. So total rank will be 1 plus 3 that equal to 4. जैसे कि फेज सेपरेट होता है, टोटल रैंक कितना आएगा. ओके, so this correction has been made, you please notice. Now we will move toward packing in solids. Packing in solids. So solids में there can be three type of packing. Okay, one is one dimensional packing. Okay, 2D packing and 3D packing. Okay, there can be three types of packing. Packing in one dimension, packing in two dimension, packing in three dimension. Two dimension can be packed in the two forms: square planar packing. You simply call as square packing. Okay, square planar is also written, square packing में चलेगा. And second is hexagonal packing. Okay, one is square planar packing. Okay, और hexagonal packing, and similarly 3D में भी आएगा. One is square packing and one is hexagonal packing. So it has two sub varieties also that we will study. Okay, now first I will move to one dimensional packing. Then what is one dimensional packing? Okay, 1D packing. Okay, 1D packing. So 1D packing है, there will be packing only one direction. एक ही डायरेक्शन पैकिंग, जैसे this and this. ना इसके ऊपर कोई एटम्स होंगे, ना इसके नीचे कोई एटम्स होंगे, ना आगे एटम्स होंगे, ना पीछे एटम्स होंगे. There will be only one dimensional packing. Okay, only one dimensional packing. ठीक है. Now इसमें we will find out the coordination number. We will find out the coordination number. Okay, so बेटा coordination number क्या होता है कि एक एटम कितने एटम्स को टच करता है, वो उसका coordination number होता है. For example, we have to find the coordination number of this atom. So this atom is touching how many atoms? एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है. So it is touching only two atoms. So in this case the coordination number will be 2. किसी भी एटम को ले लो, चाहे इसको उठा के देख लो, इसका भी, इसके आगे एक और एटम होगा, 2 को टच कर रहा होगा, इसको उठा लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 होगा. Coordination number basically means that during packing an atom is touching how many other atoms. So coordination number is 2. Got it? So this is 1D packing. Now I will move towards 2D packing. 2D packing, two-dimensional packing. So what happens in two-dimensional packing? In two-dimensional packing, एक लेयर होगी, एक ऊपर होगी, एक नीचे भी होगी, आगे पीछे लेयर्स नहीं होगी. ठीक है,
एक लेयर के ऊपर भी लेयर होगी, नीचे भी लेयर होगी। सो इट कैन बी पैक्ड इन 2 वेज, दो तरीके से इसको पैक करने के। एक है स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कुछ बोलो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकंड होगी हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग। ओके, तो ध्यान से देखना मैं कैसे पैकिंग बना रहा हूं। दिस इज स्क्वायर पैकिंग, सिंपल भाषा में दिस इज हेक्सागोनल पैकिंग। तो देखो लगा लो, एक लेयर लगा लो, एक लेयर आपने लगा ली, इसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर एक ऊपर लेयर लगा लो, नीचे लगा लो, एक लेयर ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। एक ऊपर लगा दी और एक सिमिलरली वैसे एक लगा दो। ओके, ये लेयर लगा दी। ओके, एक इसमें ऊपर लेयर होती है 2D में, एक नीचे होती है। सो नाउ फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना होगा, ये कितना को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये देखो एग्जैक्टली 1 2 3 4 को टच कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है। ये वाला आइटम कितना को टच कर रहा है, 1 2 3 फिर 4 को टच कर रहा है। किस किस को, एक इसको टच कर रहा है, एक इट इज टचिंग दिस, इट इज टचिंग दिस। ठीक है, स्क्वायर पैकिंग में देखो 1 2 फिर 3 4 को टच करता है, इसको टच नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस केस स्क्वायर पैकिंग में फॉर 2 डायमेंशन जब लेयर से ऊपर नीचे होगी, आगे पीछे लेयर नहीं, 3D में एक लेयर ऊपर भी होगी, एक लेयर नीचे भी होगी। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया इसका 4। ओके, सो दिस इज स्क्वायर पैकिंग। नाउ व्हाट इज हेक्सागोनल पैकिंग? देखो एक लेयर लगाओ, एक लेयर लगा दी। अब हमने जो सेकंड लेयर लगानी है वो इसके बिल्कुल नीचे नहीं लगानी है, इसके वॉइड में, वॉइड्स में तो जो खाली स्पेस बचता है उसमें लगानी है। इन दोनों का खाली स्पेस है ना, इन दोनों के बीच में देयर इज एन एम्प्टी स्पेस, उसमें लगाना है। इसमें क्या करेगा, अब देखो दूसरा, इसमें क्या करेगा, तीसरा, दिस इज हेक्सागोनल पैकिंग, दिस इज स्क्वायर। इसको स्क्वायर पैकिंग क्यों बोलते हैं? देखो ये 4 को टच कर रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ऐसे करके तो मैं ट्रायंगल लग रहा हूं, ऐसा करके देखो इट इज अ स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे करके देखो इट इज अ स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। अब हेक्सागोनल पैकिंग देखो, ये आ गई, एक लेयर नीचे लगा दी तो वॉइड्स में, वॉइड्स में जो एम्प्टी स्पेस बच जाते हैं ना, उसके बीच में आइटम लगाना है। ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 को टच करता है, तो हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल? देखो ऐसे 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 ऐसे, a hexagon is created, so this is known as hexagonal packing। तो 2D में, 2D मतलब एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। ठीक है, अब इस उसमें 3D छोड़ो, 3D से बाद में बताओ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो ऐसे करके होता है, इसमें स्क्वायर बनता है, उसको स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 2D में, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हेक्सागोनल में करोगे तो 6 हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये बीच में जो स्पेस बच जाते हैं इनको बोलते हैं वॉइड्स, इनको बोलते हैं वॉइड्स, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, ठीक है, अगर एटम ये स्क्वायर में होते हैं ना, तब तो पूरी तरह पैक हो जाते हैं, जैसे ब्रिक्स है रेक्टेंगल पे पैक हो जाते हैं, पर दिस इज राउंड, तो राउंड ऑफ दिस कैन पैक इट। गॉट इट? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल पैकिंग, दैट इज what is that packing? That is packing in 3D, packing in 3D, packing in 3D, packing in 3D। Okay, we will discuss about the packing in 3D। Okay, तो 3D में क्या होगा, ऊपर नीचे तो लेयर होगी, एक सामने और पीछे भी लेयर होगी, वो हमें दिखेगी नहीं, मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ट्राई टू एज्यूम इट। तो कैसे होगा, स्क्वायर प्लेन में ऐसे आ गया, 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 इसमें वॉइड्स में नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो देखो इसके ये आ गई स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, 3D में स्क्वायर वाली आती है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो देखो इसमें इसके साथ कितने आइटम्स जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जुड़ रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, 1 2 3 4, इसके साथ 4 जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब 4 जो जुड़ रहे हैं, पर हम बात 3D की कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी लेयर होगी और इसके पीछे भी लेयर होगी, इसके ऊपर भी लेयर होगी और इसके पीछे भी
लेयर होगी, दोनों साइड लेयर होगी, इसके ऊपर भी लेयर होगी और इसके पीछे भी लेयर होगी। तो कितने इसको इसमें देखो कितने को टच करेगा, ये जो ऊपर लेयर है उसमें एक एटम होगा जो इसको टच कर रहा होगा, बाकी तो दूर होगा, थोड़ा स्पेस होगा। जैसे इसको अब दिखाना पॉसिबल नहीं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके 4 टच करना है। अब जब इसके ऊपर आएगा ना तो एक एटम ऊपर टच कर रहा होगा, एक एटम नीचे टच कर रहा होगा, इसके ऊपर एक एटम और होगा जो इसको टच कर रहा होगा और इसके नीचे भी एक एटम और होगा जो इसको टच कर रहा होगा, एक एक एक्स्ट्रा होगा। सोच के देखना जरा, इसके ऊपर एक लेयर और होगी, उसका एक एटम टच करेगा, बाकी साइड वाले टच नहीं करेंगे, बाकी गैप होता है, ठीक है, और इसके पीछे भी एक एटम होगा। तो ये 4 दोनों दिखे, 1 2 3 4। अब जो तुम्हारे सामने वाले है उसमें एक एटम इसको टच कर रहा होगा जिससे कॉन्टैक्ट में, और इसके पीछे भी एक एटम इसको टच कर रहा होगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है बेटा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आता है इसमें 6। अब देखो ये जज करना मुश्किल होता है क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी 2D है, ठीक है, इसके लिए अगर क्लास में स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे समझाया जाता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल हियर। सो इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, ठीक है। अब ये आ गई स्क्वायर पैकिंग। अब मैं करूंगा हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। अब देखो हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होगा, तुम्हें पता है कैसे पैक होते हैं। एक लेयर आ गई, जो अगले आएंगे इसके वॉइड्स में आएंगे, वॉइड में, वॉइड में, वॉइड में, वॉइड में, वॉइड में, वॉइड्स में आते हैं। तो मान लो तुमने इसको कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, तो तुम्हें पता है इसके साथ कितने टच हो रहे हैं, इसके साथ कितने अदर आइटम टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 टच हो रहे हैं, 6 टच हो रहे हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर और है, उस लेयर के कितने आइटम टच हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे पेपर में दिखाना मुश्किल है, 6 तो सामने सामने हो गए, 3 ऊपर टच होते हैं, 3 नीचे टच होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही टच होता है ऊपर, क्योंकि उसके अरेंजमेंट ऐसे है। इसमें क्या होता है, इसमें रखोगे तो 3 टच होते हैं, साइड वाले 2 टच हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ इस साइड जो ऊपर वाला होगा ना, इसके ऊपर जो आइटम होगा उसके 2 भी टच कर जाते हैं और एक साइड वाला टच कर जाता है। तो इसमें इसके ऊपर भी 3 टच करते हैं। यहाँ पेपर पे दिखाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम YouTube पे कोई वीडियो देखना 3D वाला, ठीक है, उसमें देखना, मैं कोई वीडियो ढूंढूंगा वो डालूंगा। तो इसमें 3 ऊपर टच कर रहे हैं, 3 नीचे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 7 में हो गए, 6 और 3 ऊपर 3 नीचे 6 हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया इसका 6 आ गया, 6 + 6, 6 तो सामने दिख रहे हैं, 3 ऊपर है 3 नीचे, 6 + 6 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12। सो दिस इज द पैकिंग, ओके। कभी कभी 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट व्हाट इज पैकिंग, ओके। सो दिस इज द पैकिंग। 3D is bit difficult to understand, okay. So I will try to find a video or you try to find a video. This is the homework for you जहाँ पे 3D दिखाई है ताकि तुम्हें estimate हो जाए, got it?